Welcome students, welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Myself Kukreja Rahul. As per the last year, we was already learned about the standard 7 mathematics. Okay, हमने already standard 7 में mathematics पढ़ा यहाँ पे. Okay, so now in standard 8, okay, now we are learning for the standard 8 and chapter, that is chapter 1. Okay, we are starting with the chapter 1 and standard 8 mathematics. Okay, so let's start. Name of the chapter, that is rational numbers. Name of the chapter, that is rational numbers. Clear? So in the rational numbers, first of all of you know about the what is the rational numbers. Okay, all of you know about the what is the rational numbers, right or wrong? If you are not know about that what is the rational number, so we are discussing about the rational number at here. So rational number is a nothing or number, it's just like a fraction. Okay, all of you know about what is the fraction. In the fraction we know that fraction that are formed numerator upon denominator. Okay, in the fraction it's from the numerator upon denominator, but in rational number there is some changes in the rational number. That is rational number that are forming p upon q. There is just changes of the fraction and rational number. That is, in the fraction it will form numerator upon denominator, in rational number it form the p upon q. Just alphabets are changed, nothing things are changed. Okay, nothing any things that are changed. Okay, so let's start with the definition of the rational number. What is the rational number? What is the rational number? The number that can be expressed, okay, a number that can be expressed the number can be expressed as p upon q. Number that are expressed as p upon q is a rational number, right? Where q is not equal to 0. Okay, where q is not equal to 0, that means we do not write the 0 in the denominator. Here in the denominator 0 is not acceptable. Okay, अगर डिनोमिनेटर में 0 आपने लिखा होगा तो वो नहीं चलेगा. ठीक है, डिनोमिनेटर यानी q में आपको 0 नहीं लिखना है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द numbers are acceptable. Clear? So let's start. Here example of the rational number, that is example of the rational number, that is 1 upon 2, 3 upon 5, minus 4 upon 7, minus 7 upon 2, etc, etc, etc. All fraction numbers is known as also a rational number, but with the one condition, that is q is not equal to 0. That means in the denominator we do not write the as a 0. हमको डिनोमिनेटर में 0 लिखना नहीं है. ठीक है, p अपॉन q फॉर्म करेगा. p अपॉन q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही है. ठीक है, यहाँ पे p का मतलब न्यूमरेटर, q का मतलब डिनोमिनेटर, जो हमने फ्रैक्शन में ऑलरेडी पढ़ा है.
तो फ्रैक्शन की ही चीज़ें हमको यहाँ पे फॉलो करनी है, और फ्रैक्शन ही नंबर्स है यहाँ पे। रेशनल नंबर दैट इज़ वन ऑफ दी फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। रेशनल जो है वो वन ऑफ दी फ्रैक्शन ही है, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्लियर? जो फ्रैक्शन में हमने पढ़ा वही चीज़ हम सारा रेशनल नंबर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। So next topic that is equivalent rational number. Next topic that is equivalent rational number. As we are seeing the equivalent fractions, हमने ऑलरेडी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखे हुए हैं, ओके। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वैसे इक्विवेलेंट रेशनल भी होते हैं, ओके। रेशनल नंबर्स of equal values rational numbers of equal values are called equivalent fraction. Equivalent rational numbers, okay, either equivalent fraction और either equivalent rational numbers, जो भी आपको लिखना हो। हम यहाँ पे रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, सो देयरफॉर अभी हम फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे। जहाँ जहाँ हम फ्रैक्शन लिखते थे वहाँ वहाँ हम सभी रेशनल नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। अभी है कि भाई नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। Standard form of rational number. What is the standard form of rational number? What is the standard form of rational number? वो क्या है भाई? What is this standard form of rational number? The standard form a rational number is said to be standard form if and only if दो conditions हैं, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है मुझे यहाँ पे, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कहेंगे रेशनल नंबर का। कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है दैट इज इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर यानी कि P एंड डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? Q, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? Q। न्यूमरेटर P एंड डिनोमिनेटर Q आर को प्राइम। दोनों कौन से नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। व्हाट इज द को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर मतलब क्या? तो को प्राइम नंबर मतलब कि जिसका HCF 1 हो। ऐसे दो नंबर्स जिसका HCF क्या हो? 1, ठीक है। दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसके कॉमन फैक्टर्स कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए, दैट इज 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 जो है एज अ फैक्टर होना चाहिए, और 1 से बड़ा या फिर 1 से अलावा और कोई फैक्टर इसका होना नहीं चाहिए। ऐसे दो नंबर्स जो हम लिखेंगे वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। और वही को प्राइम नंबर्स जो है वो उसको अगर हम लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, यानी कि P अपॉन Q में लिखेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। और सेकंड कंडीशन है कि भाई डिनोमिनेटर में जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
डिनोमिनेटर्स में पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई ना कि 2 कंडीशंस होती हैं, राइट। मैंने क्या बोला था, देयर इज अ 2 कंडीशंस, वन ऑफ देम दैट इज बोथ ऑफ देम नंबर्स दैट आर कोप्राइम होने चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन दैट इज डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर मस्ट टू बी पॉजिटिव। ओके, डिनोमिनेटर में नंबर जो लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। Note down this one, then we are moving on the next steps. Done? अभी हम क्या करेंगे भाई, नंबर लाइंस करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, रेशनल नंबर की नंबर लाइन हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो जैसे हम फ्रैक्शन में नंबर लाइन्स फॉर्म करते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको नंबर लाइन फॉर्म करनी है। रेशनल नंबर्स की भी सेम आपको नंबर लाइन फॉर्म करनी है। ओके, जैसे हम फ्रैक्शन की नंबर लाइन फॉर्म करते थे, वैसे ही आपको रेशनल नंबर की भी नंबर लाइन फॉर्म करनी है। क्लियर। सो कैसे करेंगे, कभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स देके आपको बताता हूँ। वी आर टेकिंग द नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2। ओके, 1/2। तो 1/2 में ऑलवेज आपको जो डिनोमिनेटर है, ओके, ऑलवेज आपको डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है भाई, उसके उतने पार्ट करने हैं। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, देन मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। देन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। वी नीड टू डिवाइड दी होल नंबर लाइन इन दी 2 पार्ट्स। मुझे होल नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। अभी उसमें से कौन सा पार्ट लेना है मुझे, फर्स्ट पार्ट। ओके, देन फर्स्ट पार्ट दैट इज first part, that is 1/2 at here. Clear? Sorry. Draw again. Okay, 1/2. Clear? अभी एक दूसरा कहते हैं कि भाई 3/4। तो कितने पार्ट्स करने हैं मुझे टोटल, वी हैव टू डिवाइड द नंबर लाइन ऑन दी 4 पार्ट्स। ओके, वी हैव टू डिवाइड द नंबर लाइन इन दी टोटल 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 and 4। ओके, 1, 2, 3 and 4 हमको हो गए 4। नाउ which one of them we have to take third one, we have to take third one part, then 1, 2, 3, then third one 3/4 here. Clear? So now if you not understand what is the value of that, then we are take again the numbers again. Okay, हम और numbers ले रहे हैं यहाँ पे। We are taking the 2/7। ओके, सो 2/7 कैसे होगा, सो अगेन
एक बार मैं एक चीज़ समझा लूँ। हियर रेशनल नंबर्स में यहाँ पे आपको आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू अज्यूम द नंबर, वी हैव टू अज्यूम द नंबर लाइन जो है वो 0 और 1 के बीच में है। व्हाट वी अज्यूम दैट नंबर लाइन जो है वो 0 और 1 के बीच में है, करेक्ट। तो 0 1 के बीच में है, तो अभी मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, उसमें 7 पार्ट्स डिवाइड करने हैं। देन 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है, लास्ट वन। तो 7 पार्ट्स मेरे हो गए। आफ्टर दैट हमको कौन सा लेना है, सेकंड वन। देन 1 2, देन दिस इज माय सेकंड वन, 2/7, क्लियर। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 जब भी करते हैं तो क्या होता है, आंसर ऑलवेज 1 आता है, ठीक है, क्लियर। अभी क्लियर हुआ। वी आर टेकिंग दी अगेन दी नंबर दैट इज -6/11, ओके। नाउ यहाँ पे कौन सा था, पॉजिटिव था 2, यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, दैट इज -1। सो व्हाट नंबर्स वी हैव टू टेक एट हियर, दैट इज 0 to -1। यहाँ पे क्या था, 0 to +1 था, बिकॉज कि यहाँ पे प्लस था नंबर। यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव नंबर है, तो हम जो है कौन से नंबर्स लेंगे, 0 to -1, ठीक है। तो 0 to -1 यानी कि 0 यहाँ पे लिखना होता है एंड -1 आर एट दी लेफ्ट साइड। ये प्लीज एक खास कर लेना स्टूडेंट्स, नोट डाउन दैट जब हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो 0 to 1 ऐसे लिखेंगे, और अगर हम जो माइनस नेगेटिव नंबर्स लेंगे तो 0 to 1 दैट इज 0 to -1 इस तरफ लेंगे, ठीक है, दैट्स द रूल, राइट। सो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू डिवाइड, कितने पार्ट्स करने हैं मुझे, 11 पार्ट्स करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 इज नंबर itself, okay, 11 is number itself, right। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, तो हम ऐसे गए थे, ओके। नाउ 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे, दिस टाइम, ओके। सो कहाँ तक जाना है, -6 तक जाना है। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 एंड -10/11। सो -6/11 कहाँ पे आएगा, -6/11 एट हियर, ओके। आपको ऐसे बॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। डन। अभी हम एक नंबर लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। वी आर टेकिंग द नंबर, डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर जो है बड़ा हो। वी आर टेकिंग दी 7/2, ठीक है, 7/2। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि भाई पार्ट्स कितने डिवाइड करने हैं, 2 पार्ट्स डिवाइड करने हैं, उसमें 7th कहाँ से लूँगा मैं, 2 पार्ट्स में 7th आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरी नंबर लाइन जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगी और उसमें 7th वन आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं। तो हाउ टू सॉल्व इट, तो इसमें हम पहले डिवाइड करेंगे 2 को 7 के साथ, देन क्या आएगा, 2 3 जा 6 एंड आंसर इज 1, ओके, रिमाइंडर इज 1। तो अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें। इफ वी आर राइटिंग दी इनटू मिक्स फ्रैक्शन, व्हाट इज द आंसर ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 3 integer 1/7, okay, the answer will be 3 integer 1/7. Now we have to draw the number line, okay, now we have to draw number line। now अभी लास्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे आपको आगे कोई नंबर्स नहीं था, बट अभी आपको यहाँ पे आगे एक नंबर आ गया यहाँ पे, क्लियर। नाउ अभी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर आपको यहाँ पे नंबर 9 पे लेने हैं।
कौन सा आएगा 3, देन हम क्या लेंगे 3 and 4 के बीच में लेंगे। क्लियर क्लियर। आपको क्या था इसके पहले -6/11 था, तो आपको यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं था, तो हमने कौन से लिए थे नंबर 0 और 1 के बीच में लिए थे, 0 और -1 के बीच में। यहाँ पे 3 है तो कौन से बीच किसके बीच लेना है 3 and 4 के बीच में लेना है। ठीक है, सो 3 और 4 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं 7 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 7 तो नंबर इटसेल्फ होता है। ओके, तो अभी मैं चेंज कर लूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 दैट आर इटसेल्फ 4। ओके, 4 जो होगा वो एज अ इटसेल्फ 7th पार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा लेना है फर्स्ट वन। हियर माय फर्स्ट वन दैट इज 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 and we have to take the 1/7 at here। क्लियर, समझ में आया सभी को। Please note down this one fast। Now we are comparing the rational numbers। Okay, now we are taking the comparison of rational numbers। Okay, comparison of rational numbers, what is that कि भाई दो रेशनल नंबर या फिर जो हमने फ्रैक्शंस पढ़ा तो दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करें। ओके, हम जो फ्रैक्शन को जैसे अर्लियर क्लास में कंपेयर करते थे वैसे ही हमको रेशनल नंबर्स को भी कंपेयर करना है। क्लियर, सो हाउ वी कंपेयर, सो वन ऑफ देम मैं आपको देता हूँ यहाँ पे 1/2 एंड इफ आई टेकिंग दी 3/4 एट हियर, देन विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दी नंबर्स टू इटसेल्फ। सो 1 × 4 कितना होगा एंड 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, देन क्या आया 4 1 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, विच वन इज ग्रेटर फ्रॉम बोथ ऑफ देम, 6 इज ग्रेटर देन 4, देन योर आंसर विल बी 1/2 इज ग्रेटर देन दी 3/4 इज ग्रेटर देन दी 1/2। ओके, दिस इज योर आंसर। और कोई नंबर्स लेते हैं -4/5 एंड -3/8, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन 8 4 ज़ा 32 -32 3 5 ज़ा 15 -15, देन -32 और -15 में कौन सा ग्रेटर है -15। ओके, विच वन इज ग्रेटर -32 और -15 -15। ओके, so therefore -4/5 and -3/8 is greater than -4/5। okay, -3/8 is greater than the -4/5। clear, so I hope all of you are understood that how to compare the two rational numbers। यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स हमने कंपेयर किए। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर टेकिंग दी मोर देन 2 नंबर्स टू कंपेयर दी रेशनल नंबर्स। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी आर टेकिंग दी more than 2 numbers to compare the rational numbers।
Clear? So I hope all of you are enjoying this class very much. Okay, so what is the homework? Homework is that complete the example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, आपको कौन से एग्जाम्पल करने हैं? एग्जाम्पल 1, 2, एग्जाम्पल 7. होमवर्क लिख लीजिए. होमवर्क इज एग्जाम्पल 1 to 7. ठीक है, डन. सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.